Now we'll start with area under the curve. Now listen carefully. Area under the curve, which is also called as application of definite integration. Now let's say, for example, area under the curve gives you an understanding of if an area is bounded by two geometrical figures, that is two geometrical curves, a line and a curve, two lines, three lines, an equation is given to you. Say for example, let's take a simple example of area bounded by y is equal to, let's say area bounded by x plus 2y is equal to 8. Okay, x plus 2y is equal to 8 and x is equal to 2, x is equal to 4. Now what do you understand here is, I can understand there is a straight line. Now first thing, whenever you're doing area under the curve, the first thing you are supposed to understand whether this geometrical figure will pass through the origin or not. ये सबसे पहला point रहता है. You will check whether it is passing through the origin or not passing through the origin. So what we do is, कुछ नहीं करना है. You will put x is equal to 0 and y is equal to 0. Direct. Now if I put x is equal to 0 and y is equal to 0, let's take the LHS. My LHS will become 0. Let's take the RHS. RHS is 8. So LHS not equal to RHS. Hence it is not passing through. Not passing through origin. Step number 1. So first step, doesn't matter what the geometrical figure is. It's a straight line. We understand that this is not passing through the origin. Hence I know that मेरा geometrical figure जो है, which is a straight line, this is not going to pass through the origin. देख के मालूम पड़ गया था. Second, step number 2, plotting. Let's understand कि ये line का points कहाँ रहेगा. 2 रहेगा, 4 दिया है. So they are giving you a hint कि अरे यार what will be the line, where will be the line when x is 2, where x is 4. So what we do is, I know understand that this is the intercept form. So intercept form देखो, I can write it like this, x plus 2y is equal to 8. Now, intercept form में what we can do is, I can directly write x upon 8 plus y upon 4 is equal to 1. Okay, so my coordinates will be basically, I can take a point as a as 8, 0 and b as 0, 4. This is the intercept form. But if I have to find out कि यहाँ तक किसी ने बोला कि you have to, how will you plot, what do you understand by plotting? I'll show you. Pay attention. I'll take x and y. Now guys, if I take x as 0, if I take x as 0, my y will become 4. Perfect. See, now I can take x as 1. But if I take x as 1, see if I take x as 1, ये ना fraction हो जाएगा. So मुझे बोला है कि x 2 x 4, तो I will check for even. You can check for 0 to 8 all values, doesn't make a difference. So what I'll do is, I'll take x का value as 2. Guys, if I take x का value as 2, my y becomes 3. If I take x का value as 4, my y becomes 2. If I take x का value as 6, my y becomes 1. And if I take x का value as 8, my y becomes 0. So this is the plotting. Third part. ये हो गया plotting. Third part. We'll draw the geometrical figure. ठीक है. How will we draw? देखो, सबसे पहले इस geometrical figure कैसा दिखेगा? I'll draw this. So let's draw our geometrical figure. Intercept form. It's going to be like this. ठीक है. X, x dash, y, y dash. Okay. Let's plot this. So it will be like this. ये देखो. If you want, we can draw it like this. ठीक है.
आई एम ड्राइंग द ज्योमेट्रिकल फिगर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. ये जो पॉइंट है, दिस इज द वाई एक्सिस, दैट इज B0,4. ये जो पॉइंट है गाइस, दिस इज A8,0. Okay, now the first geometrical figure, now they have said something x is equal to 2, x is equal to 4. Now say for example, I will take, imagine I am taking x2 here and I am taking x4 here. I have taken x as 2 and x as 4. Matlab, my geometrical figure has two lines which is like this. ये है x2 and ये है x4. Okay, so I have to find the area between them. Now when we say that area between them, it means that I have to find इसका area. This is the area that I have to find, and once I know that this is the area that I have to find, there is only one geometrical figure, only one geometrical figure. So what I will do is, always remember this, area bounded by the curve. Okay, area is nothing but, सबसे पहले guys, अगर मैंने लिमिट्स में x का कोऑर्डिनेट लिया है जो कि मुझे दिया है, तो उसके साथ dx आएगा. आई रिपीट अगेन, अगर यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट्स लिया तो यहाँ पे dy आएगा, अगर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट्स लिया तो dx आएगा, एंड अगर यहाँ पे dx आएगा तो यहाँ पे y लेंगे हम लोग. Now what do you understand by this? It means that from this geometrical figure I am going to integrate dx, मतलब I need x variables, but y is nothing but 8 minus x by 2, which is nothing but y. So what I am going to do is integration 0 to 4, y is nothing but 8 minus x by 2 dx. Now I know that 8 minus 2 is nothing but 4. So I'll write 4 integration 2 to 4 1 dx minus 1 by 2 integration x dx, and which is nothing but, this will become 4. Okay, 4 x minus x square by 4 from 2 to 4. Okay, and now so पूरे आंसर में I will put upper limit, पूरे आंसर में I will put upper limit. So this will become 16 minus 4, which will become 16. 4 times 4 is 16, minus 4 square by 4 is 4. So 16 minus 4 becomes 12 minus 8, and if I put 2 here, it will become 8 minus 1, that is 7, which will become 5 square units. This is how you solve a geometrical figure. So remember this, when you solve this, all I have done is, we first find out whether it is passing through the origin, second part is plotting, third is your drawing part, and whenever you draw na, see, always remember this, you need to understand certain things. यहाँ पे हो गया x, ये हो गया x dash, ये हो गया y, ये हो गया y dash, this is origin 0,0, this is a, this is b. You can write scale also. If this is a theoretical paper, the scale, whatever scale you have taken, this is x is equal to 2, you can write x is equal to 2 here, you can write x is equal to 4, and this will become 2x plus y is equal to 8. This is an entire geometrical figure, and here the easy part is when they tell you कि you have to find. Now without drawing the points also you can do it. How? They have given you the x का value. So whenever they have given you the x का value, कुछ नहीं करना है, मुझे x का value दिया है तो मुझे y को इंटीग्रेट करना है, और y का वैल्यू इज 8 माइनस एक्स बाई 2. ओके, विल डू वन मोर सम अबाउट दिस, अ वेरी बेसिक सम जहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. आई राइट एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. गाइज दिस इज पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. नाउ आई विल शो इट टू यू कि वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनीथिंग, नथिंग वी आर गोइंग टू ड्रॉ. Only one geometrical figure, limits are given. See what I am going to do. We'll solve by both methods. I'll just write that area is nothing but integration. जिसका भी वैल्यू दिया है उसका dx आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा. Guys, y is nothing but x square, and this will become
x cube by 3 from 1 to 2, which is 8 by 3 minus 1 by 3, and my answer is 7 by 3 square units. Nothing we have done. Nothing. They have given you the limits, they have given you the shaded region, they have given you the limits, they have given you a parabola. I have just integrated because मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन चाहिए जो दिया है, मुझे लिमिट्स दिया जो दिया है. So I don't have to think. But say for example you want to draw it, just in case you want to draw it. So let's start with the drawing part, the entire method that we solve. Now how do we do this? सबसे पहले I will check whether it is passing through the origin or no. Okay, this is the method 2 we are doing. This is basic. See, if it comes in the theory paper for a very small amount of marks, this is how you do it. When it comes for higher marks, you have to plot and show. Now, say for example, I will start with LHS. LHS is 0, RHS is 0, therefore it passes through the origin. तो मुझे पता चल गया, देखो पैराबोला है, हमको देख के मालूम पड़ रहा है कि दिस पैराबोला विल पास थ्रू द ओरिजिन बिकॉज इट इज़ 0,0. नाउ लेट्स प्लॉट. अब देखो 0, 1 और 2 तो दिए है. लेट्स मेक अ अच्छा पैराबोला. लाइक व्हेन एवर यू प्लॉटिंग अ पैराबोला ना, स्क्वायर जिसके साथ है ना उसका वैल्यू डालो. पहला 0 डाल दिया, 0 डाल दिया, मैंने डाल दिया +-1, तो इसका आंसर हो गया 1. मैंने डाल दिया +-2, तो इसका आंसर हो गया 4. दैट्स इट. यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 दिया था, मैंने +-1 डाल दिया, +-2 डाल दिया, बिकॉज एज यू नो दिस रिफर्स टू अ स्माइलिंग पैराबोला. y = x² रिफर्स टू अ स्माइलिंग पैराबोला. नाउ लेट्स ड्रॉ अ पैराबोला. ठीक है, एक अच्छा पैराबोला बनाते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ पैराबोला. मैंने एक पैराबोला बना दिया. ठीक है, ये मेरा पैराबोला. पैराबोला का नाम है y = x². ठीक है, यू कैन प्लॉट इट, पैराबोला ही बनेगा. बट देखो x का वैल्यू क्या दिया है. अब देखो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +-2 है, तो यहाँ तक 2 रहेगा, यहाँ पे वो बढ़ता ही जाएगा ऑब्वियसली. सो आई विल डू इज आई विल टेक 2 पॉइंट्स. ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस गाइस. सो मैंने 2 पॉइंट ले लिया. समझो है ये मेरा x = 1 और समझो है मेरा x = 2 है. x = 1 एंड x = 2. दिस आर द 2 थिंग्स दैट आर गिवन टू मी. इसको प्लॉट कर देंगे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लॉटिंग पार्ट. दिस इज द प्लॉटिंग वेयर आई नो दैट गाइज दिस इज x = 1 एंड दिस इज x = 2. दिस आर 2 वैल्यूज. y = x², ये हो जाएगा x डैश, y डैश. इसको ऐसे छोटा कर दिया. ठीक है, स्केल एंड एवरीथिंग. अब मुझे पता है कि एरिया इज़ बाउंडेड बाय दिस, तो कुछ नहीं करना है. एरिया = 1 to 2 y dx, which is nothing but 1 to 2 x² dx. And if you check, this is exactly the thing we have done. So whenever one geometrical figure is given to you, limits is given to you, you can directly write it like this. You can directly integrate it and you will get the answer. Anybody has any doubts here? Now what will happen when I have 2 geometrical figure? Or say for example, if I take a value, say for example, chalo, let's take this one. Okay, area bounded by y = x², x = y². I have taken 2 parabolas. y = x², x = y². Think of it as 2 different sums. But इसमें प्रॉब्लम क्या है बताएं, हमको वैल्यू दिया ही नहीं है. हमको कोई भी वैल्यू दिया नहीं दिए चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. कैसे? पहले इसका पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसका पॉइंट निकालते हैं. डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. सबसे पहले आई विल चेक फॉर y = x². सिंस आई टेक y = x², since I take y = x², treat it as a different entity. I will put x = 0, y = 0. Let's take LHS. LHS is 0. Let's take RHS. RHS is 0. So I know for sure that it is passing through the origin.
आई नो फॉर श्योर दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सिंस दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स, बट रिमेंबर पॉइंट्स आर नॉट गिवन टू मी. एक्स वाई और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कुछ नहीं, मैंने एक्स का वैल्यू 0 डाल दिया, वाई का वैल्यू 0. एक्स के साथ स्क्वायर है, मैंने +-1 डाल दिया. जैसे ही मैंने +-1 डाल दिया 1 हो गया. जैसे ही मैंने +-2 डाल दिया 4 हो गया. ठीक है, विल स्टॉप. हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं बट विल स्टॉप. लेट्स टेक द सेकेंड ज्योमेट्रिकल फिगर. इफ आई टेक द सेकेंड ज्योमेट्रिकल फिगर, देखो let's take the second geometrical figure. My second geometrical figure is x² is equal to y. I'll put x is equal to 0, I'll put y is equal to 0. I'll take the LHS. LHS बन गया 0, RHS बन गया 0. तो देख के मालूम पड़ रहा है कि गाइज ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेस ही नहीं है. मुझे एक पॉइंट मिल गया है. तो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर सबसे पहले ओरिजिन पर मिल रहा है. पैराबोला पैराबोला, आई नो दैट दीज आर ऑल स्टैंडर्ड पैराबोलाज विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन पर मिलेंगे. सेकेंड थिंग, मैंने x डाल दिया, मैंने y डाल दिया. अगर मैंने गाइज x का वैल्यू 0 ले लिया, y का वैल्यू, एक काम करो इसमें ना, इफ़ हाँ चलो x एंड y, आई पुट 0 0. गाइज y में आई पुट +-1, सो x विल बिकम 1. y में आई पुट +-2, दिस विल बिकम 4. ना आई कैन सी 2 पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द 2 पॉइंट्स आर, एंड ध्यान से देखो, सबसे पहले ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज, जब x 1 है तो y 1 है, जब x 1 है y 1 है. y का 2 वैल्यूज है, बट x 1 y 1 एंड हियर पर ऑल्सो x 1 y 1. तो आई नो दैट नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट, बट किसको इंटीग्रेट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज अर्लियर वी यूज टू ड्रॉ वन ज्योमेट्रिकल फिगर विथ लिमिट्स एंड दैट यूज टू बी ईजियर फॉर अस. अब कुछ नहीं करना है. सुनो, वंस आई प्लॉट, ओके, जो ये पैराबोला है फर्स्ट वाला, ओके, एंड सेकेंड वाला ये सेकेंड पैराबोला. ओके, मुझे देख के मालूम पड़ रहा है कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट 0,0. सो ये हो गया मेरा 0,0, ये हो गया मेरा 1,1. ओके, इसके बीच का एरिया निकालना. काम करता हूँ, सबको नाम डाल देता हूँ. दिस इज y² इज इक्वल टू x, दिस इज x² इज इक्वल टू y. y² इज इक्वल टू x इज अ c एंड x² इज इक्वल टू y इज नथिंग बट अ स्माइलिंग पैराबोला. ओके, कुछ नहीं करना है इसके बाद. ये देखो मेरा एरिया क्या रहेगा. एरिया एनी पैराबोला माइनस एनी पैराबोला, बिकॉज व्हेन आई सब्ट्रैक्ट द एरियाज, माई सब्ट्रैक्शन ऑफ एरियाज अगर नेगेटिव भी रहेगा, सो सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, आई विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट. तो आई विल राइट 0 to 1 y dx, ये फर्स्ट पैराबोला है, माइनस 0 to 1 y dx. सी दिस इज योर फर्स्ट पैराबोला एंड दिस इज योर सेकेंड पैराबोला. इन द फर्स्ट पैराबोला इफ यू सी y का वैल्यू इज नथिंग बट x² dx. इन द सेकेंड पैराबोला y का वैल्यू is nothing but √x dx. And guys, when I integrate this, x² will become x³ by 3 minus ठीक है, because guys this is the shaded region. तो फर्स्ट पैराबोला को सेकंड पैराबोला से सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स अप टू यू. एंड नाउ व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, ऑब्वियसली 0 के साथ तो 0 हो जाएगा. दिस विल बिकम 1/3 माइनस 2/3 विच विल बिकम माइनस 1/3 माइनस 0. पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट. तो माई आंसर विल बिकम, इफ यू सी 1/3 माइनस 2/3 विल बिकम माइनस 1/3. So guys, what is the absolute value of minus 1/3? 1/3 square units. So this is the area. What I have done is nothing. सबसे पहले treat it as two different entities. Find the point of intersection. कोई भी
एनी ज्योमेट्रिकल फिगर को एनी सेकंड ज्योमेट्रिकल एनी ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर को उसके नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर से सब्ट्रैक्ट करो. सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे मिलेंगे, कौन से वो पॉइंट्स है. ना समवन विल आर्ग्यू कि और भी पॉइंट्स रहेगा. ट्राई आउट, फाइंड आउट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट very difficult to get it. Now a lot of students, what they do is, I'll just show this to you. When these are the two geometrical figures, okay, what they do is, okay, they do it by this method. I'll just show this to you. Okay, a lot of people don't find the plotted points. That's fine. See, this is how to do. They will square the first equation. So my first equation will become, I'm just showing you कैसे कर सकते हैं. They will just square the first equation. तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4. सेकेंड इक्वेशन से वाई स्क्वायर का वैल्यू इज एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4. तो एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो या तो एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू 1. अरे तो मिल गया डायरेक्ट, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. बट दिस डज नॉट, दिस कैनॉट बी दैट फ्लेक्सिबल ऑलवेज. इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल फिगर. सो वी विल बी यूजिंग दिस मेथड टू. Depends on how comfortable are you by this. This is a very clear picture, so that you are not confused कि अरे बाकी का पॉइंट्स कौन सा है. हम एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स निकाल रहे हैं, so that you can draw the geometrical figure. Even if you forget कि अरे ये पैराबोला है, when you draw it तभी एक आइडिया आ जाएगा कि ओ this is when x is -1, y is 1, when x is -2, y is 2. तो x is positive, negative and y is positive, मतलब my geometrical figure will come in the second and first quadrant. If y is positive or negative and if x is positive, I know that my geometrical figure is going to come in the first and the fourth quadrant. अब दोनों geometrical figure में क्या कॉमन है कि एक है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, एक है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में. इससे एडवांटेज ये हो गया कि मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड उससे भी सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया कि बाई गाइस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट द ओरिजिन. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो डजंट मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द क्वेश्चन इज, सबसे पहले यू चेक वेदर इट इज पासिंग टू द ओरिजिन. सेकंड, इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, पॉइंट्स निकल गए. थर्ड, ड्रॉ इट, sketch the graph. Fourth, if there are two geometrical figure, any geometrical figure minus any geometrical figure, you will get the area bounded by the region. Has everybody understood this? Now, say for example, if I take a question, okay, same question, but y square is equal to 4ax, x square is equal to 4ay, and a is your constant. If you check, it's the same sum. y square is equal to 4a के जगह मैंने x डाल दिया, and x square is equal to 4a के जगह मैंने x square is equal to y डाल दिया. It's the same sum. So I am 100% sure that yes, it is passing to the origin. Problem is when I am substituting the value. How am I going to plot a का value? So remember this, okay? We'll start again in the same pattern. सबसे पहले I will put x is equal to 0 and y is equal to 0. यहाँ पे ले लिया मैंने y square is equal to 4ax. I'm taking the LHS, I'm taking the RHS. ये हो गया 0, ये हो गया 0. y square is equal to 4ax, x is equal to 4ay. LHS RHS हो गया and I have got कि yes, it is passing to the origin. Perfect. Problem is plotting. अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो ये 0 है, प्रॉब्लम है ही नहीं. माई कंसर्न इज कि मैंने y का वैल्यू क्या लिया, तो वैसे ही मुझे x का वैल्यू मिलेगा. देखो ध्यान से, आई एम गोइंग टू टेक y का वैल्यू एज प्लस माइनस a. जैसे ही मैंने y का वैल्यू प्लस माइनस a ले लिया, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, मैंने y का वैल्यू प्लस माइनस a ले लिया, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. एक a निकल गया, a निकल गया, सो x विल बिकम a बाई 4. ठीक है, आई हैव गॉट x का वैल्यू इज a बाई 4. तो यहाँ पे हो गया x इज a बाई 4. मैंने y का वैल्यू ले लिया प्लस माइनस 2a, सो माई x का वैल्यू बिकम्स 1. ठीक है, माई x का वैल्यू बिकम्स 1. नाउ यू कैन सॉल्व इट by just squaring and you can adding, you will get the same answer.
But now in the previous sum when my coordinates were 0 1 2 3 यहाँ पे होगा 0a 2a 3a 4a, बस एक ही चेंज है कि मेरे एक्स एक्सिस पे सब कुछ a में आ जाएगा, वाई एक्सिस में सब कुछ a में आ जाएगा. ठीक है, a x will become a. ओके, तो 4a स्क्वायर एंड x इज इक्वल a हो गया, तो 0a 2a हो गया. लेट्स टेक द नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर. Now again I'll take x is equal to 0, I will take y is equal to 0. Just a small change, we'll understand कि कितना impact होगा मेरे फाइनल आंसर पर. ये हो जाएगा x square is equal to 4ay, I'll take LHS 0, I will take RHS 0. So ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा मेरा y. I will take x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 0. I'll take x का वैल्यू एज प्लस माइनस a. I'll take x का वैल्यू एज प्लस माइनस a. तो ये a हो जाएगा, एक a निकल जाएगा, दिस विल बिकम a बाई 4. एंड इफ आई टेक x का वैल्यू एज प्लस माइनस 2a, माई y बिकम्स a. ओके, याद रखो. तो a, 2 है, a, 2 है, आ रहा है कुछ ना कुछ तो आ रहा है जहाँ पे लोग इंटरसेक्ट करें. किसी ने बोला स्क्वायर करके करते, नो प्रॉब्लम, लेट स्क्वायर इट एंड चेक. अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो दिस विल बिकम y रेज टू 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर x स्क्वायर. आई हैव x स्क्वायर का वैल्यू, सो y रेज टू 4 विल बिकम 16a स्क्वायर इंटू 4ay. हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे y क्यूब इज इक्वल टू 16 टाइम्स 4 इज 64a क्यूब. सो y विल बिकम 4a. तो y इज इक्वल टू 4a आ गया. अब यहाँ पे ना देखो, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. अब कोई बोलेगा एक ही पॉइंट मिला है, नहीं, एक्चुअली देखो इट इज़ लाइक दिस, y रेज टू 4 माइनस 64a क्यूब y इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज व्हाट यू सपोज टू टेक कॉमन. If I take y common, I'll take y cube minus 64a is equal to 0. So either y is equal to 0 or y is equal to 4. This is the actual thing. A lot of people cancel बोलते कि अरे दूसरा पॉइंट आया नहीं है, तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन नहीं, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है बिकॉज y either y is equal to 0 or y is equal to 4a. This is what exactly we have got. Okay, so whatever is comfortable for you guys, you can solve by that method. नाउ अब इसको प्लॉट करते हैं. ओके, प्लॉटिंग इज एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव डन. सो दिस विल बिकम, इफ आई हैव टू प्लॉट, देखो सिंपल सी बात है, 4a, देखो यहाँ पे आई हैव गॉट द वैल्यू, यहाँ पे कहाँ पे क्या मेरा 0, 0 इज़ योर फर्स्ट. ठीक है, अगर मैंने y का वैल्यू यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, अगर मैंने x का वैल्यू a डाल दिया तो y विल बिकम 4a स्क्वायर, तो y विल बिकम प्लस माइनस 2a, बराबर. तो y विल बिकम 4a, y इज़ 4a. अगर मैंने a का वैल्यू a, 2a, एक काम करेंगे, यहाँ पे ना हम लोग को 4 भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग 4a डालेंगे. एंड इफ़ आई पुट y का 4a तो x विल बिकम, नहीं, x का वैल्यू, इफ़ आई पुट y का वैल्यू एज प्लस माइनस 4a एंड हियर इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a. देखो यहाँ पे अगर y का वैल्यू मैंने प्लस माइनस 4a डाल दिया तो x विल बिकम 4a, बराबर. एंड यहाँ पे अगर मैंने x का वैल्यू प्लस माइनस 4a डाल दिया तो y विल बिकम 4a. तो माई पॉइंट इज़ गोइंग टू बी 0, 0 एंड 4a, 4a. ठीक है, माई वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, 0 एंड 4a, 4a. देखो ना, यहाँ पे 4ax हो गया, वहाँ पे 4a हो गया, यहाँ पे 1x था तो यहाँ पे 1, 1 हो गया. ओके, सो रिमेंबर दिस. अब कुछ नहीं करना है, द सेम पैटर्न दैट वी फॉलो गाइस. ओके, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to 4a फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर माइनस 0 to एरिया बाउंडेड बाय द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये फाइंड आउट करने का, एंड y dx. तो फर्स्ट में y का वैल्यू, इफ आई टेक दिस एज फर्स्ट,
y का वैल्यू विल बिकम 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स माइनस y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4a dx। दोनों का मैंने लिमिट सेम ही है तो 0,4 है ऐसे लिख दिया। ओके नाउ 2 रूट ए इज अ कांस्टेंट तो हो जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स विल बिकम 2x रेज टू 3/2 बाई 3 ओके माइनस दिस विल बिकम एक्स क्यूब बाई 12a 0 to 4a ओके ये हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है सो दिस विल बिकम, अगर मैंने x की जगह 4a डाल दिया, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करते पहला, तो दिस विल बिकम 4 रूट ए इंटू 4a रेज टू 3/2 अपॉन 3। देखो सेकेंड आंसर 0 ही होना वाला है, माइनस दिस विल बिकम 4a द होल क्यूब अपॉन 12a minus 0 and then you simplify this and you will get the answer. So देखो यार सिंपल सी बात है, 4a का क्यूब will become 64a क्यूब ओके 4a इंटू 4a इंटू 4a ओके उससे अच्छा a क्यूब को अलग कर दो बिकॉज a रेज टू 3/2 simplify this and you will get the answer. Has everybody noticed this? Can you solve this sum? Okay now remember this in these kind of sums ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है, कितना ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। से फॉर एग्जाम्पल विल टेक अ क्वेश्चन सर्कल एंड अ लाइन। सबसे अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ओके। My question is this: x square plus y square is equal to 16 and y is equal to x. I know that x square plus y square is equal to 16 में this is x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square. मुझे पता है मेरा रेडियस 4 है। Second, y is equal to x is a straight line that is passing through the origin. प्लॉट करते हैं ठीक है, सबसे पहले ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, हमें पता है कि ये नहीं होगा ये होगा, बट लेट्स चेक। सो आई विल टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, आई विल टेक दी LHS विच इज़ 0, आई विल टेक दी RHS दैट इज़ 16। ये ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, LHS इज 0, RHS इज 0, देयरफॉर इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओके, बेस्ट हो गया। नेक्स्ट I will plot x and y okay। अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो y will become +-4, अगर मैंने y का वैल्यू 0 डाला तो हो जाएगा +-4। तो बेसिकली मेरे को सब पॉइंट्स मिल गया। हाँ तुमको बीच में कुछ निकालना है वैल्यू, दैट्स अप टू यू, बट आई डोंट नो वेदर विच पॉइंट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। आई हैव नो आइडिया विच पॉइंट दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट बिकॉज मेरा रेडियस 4 है, मेरा रेडियस 4 है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मेरा एक्स का दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो फॉर दिस सम ना आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि यहाँ तक ये है बराबर है, एक काम करते हैं चलो, बिकॉज इसका वैल्यू तो क्या रहेगा, चलो ये बना देते हैं हम लोग। ये है एक्स, ये है वाई, ये 0 0, ये +-1, ये हो गया +-1, ये हो जाएगा +-2, ये हो जाएगा +-2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ऐसे करते हैं, मैंने वाई के जगह एक्स का वैल्यू डाल दिया, so x square plus x square is equal to 16, 2x square is equal to 16, x square is equal to 8, x is equal to +-2 रूट 2। और गाइस अगर x is equal to +-2 रूट 2 आ गया, अगर x का वैल्यू है टू रूट 2 तो y का वैल्यू भी रहेगा 2 रूट 2, अगर x का वैल्यू है -√2 रूट 2 तो y का वैल्यू बिकम -2 रूट 2। मतलब इसका मतलब ये होता है, देखो आई एम गोइंग टू राइट दिस कि अगर x है 2 रूट 2 तो y भी है 2 रूट 2, अगर x है -2 रूट 2 तो y भी हो जाएगा -2 रूट 2। मतलब सर्कल और लाइन दो क्वाड्रेंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक है थर्ड क्वाड्रेंट। अब जैसे ही ये दो क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगे, लेट्स प्लॉट द ग्राफ।
छोटा ही ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ओके। मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, सर्कल हो गया, ओके। रेडियस अगर 4 है तो दिस विल बिकम 4,0, 0,-4, -4,0, 0,4। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ 2√2, 2√2, एंड दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट -2√2, -2√2, ओके। अब सर्कल एंड लाइन, और एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड नहीं किया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, in the first quadrant, I'm just will make this question a little easy कि I'm going to write this in the first quadrant। अब इसमें एक मेजर कैच है, जो लाइन है ना, लाइन उसका वैल्यू 2√2 तक है, बट मेरा जो सर्कल है ना वो 4 तक जा रहा है। लाइन 4 तक जा ही नहीं रहा है इन दिस डायग्राम, बिकॉज लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट 2√2। तो थिंक कि लाइन का जो बाउंड्री है ना वो 2√2 तक है, मतलब यहाँ तक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सम का। लाइन का बाउंड्री ना गाइस यहाँ तक है, लाइन का बाउंड्री यहाँ तक है, बट सर्कल का बाउंड्री 4 तक है। तो लाइन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ओनली टिल 2√2। लाइन 4 तक जाएगा ही नहीं डायग्राम के अंदर, वो 4 तक जा सकता है। सी दिस विल बी 4,4, दैट्स फाइन, बट इट इज़ नॉट इन द एरिया, इन द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, आई टेल यू। तो दिस इज 2√2, 0। अब देखो कैच क्या है, मैं बताता हूँ तुमको। इसको हम लोग पॉइंट ले लेंगे m, इसको ले लेते हैं a, ये हो गया ओरिजिन। सो आई विल राइट एरिया बाउंडेड इज नथिंग बट I will take 0 to 2√2 for the line minus 2√2 to 4 for the circle। आपको बोलेगा अरे सर्कल को हम लोग 0 to 4 क्यों नहीं ले रहे? 0 to 2√2 लाइन जितना जो लाइन प्रॉपर्टीज यूज करेगा वही सर्कल भी यूज करेगा, तो 2 बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो 0 to 2√2 का जो भी हम लोग लाइन इंटीग्रेट करेंगे उसको हम लोग जो भी एक्सेस पार्ट है वो सर्कल को बिलोंग करते हैं, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो इसको क्या होता है, लेट्स राइट इट लाइक दिस। कॉमन ही ले लेंगे, लिमिट्स सॉरी कॉमन नहीं ले सकते हैं, सो सॉरी। तो जगह 0 to 2√2 y dx माइनस 2√2 to 4 y dx, ठीक है। नाउ जब मैंने लिखा y dx व्हेन आई राइट y dx सबसे पहले लाइन का, तो एरिया विल बिकम 0 to 2√2, 0 to 2√2। देखो ध्यान से देखो, 0 to 2√2 y dx इज नथिंग बट x माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2√2 इंटीग्रेशन 2√2 to 4। देखो ध्यान से देखो, y का वैल्यू देखो क्या रहेगा, 16 माइनस x² dx। अब ये हो जाएगा √a² माइनस x²। एंड व्हेन यू सॉल्व √a² माइनस x², देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल बिकम x²/2 0 to 2√2 माइनस, अब यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग नीचे रखते हैं, माइनस √a² माइनस x² इज x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a फ्रॉम 2√2 to 4। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, √a² माइनस x²। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वंस आई सिंप्लीफाई दिस, सो x² 2√2 का स्क्वायर इज 8, सो 8/2 माइनस 0, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। माइनस सेकेंड पार्ट करते हैं,
ठीक है, अगर मैंने 4 डाल दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 ये 4/2 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1. ओके, 8 प्लस साइन इनवर्स 1, पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट. तो अगर मैंने यहाँ पे 2√2 डाल दिया, देखो ध्यान से देखो, 2√2, इसको एक काम करते इसको भी ब्रैकेट बनाता हूँ. अगर मैंने 2√2 डाल दिया, 2√2, so 2√2 square becomes 8 and this will become 2√2 by 2 becomes √2. 16 minus 8 is become 2√2, तो ये हो जाएगा into 2√2 plus 16 by 2 becomes 8, ये into है 8, sin inverse 2√2, sin inverse 2√2 becomes sin inverse 1/√2. ठीक है, सो ये हो जाएगा, पहला वाला ब्रैकेट हो गया 4 माइनस दिस विल बिकम 8 साइन इनवर्स 1. 8 साइन इनवर्स 1 इज नथिंग बट 8 π/2, 8 π/2 माइनस, ओके, माइनस 8 π/2, 2 times 2 is 4 माइनस 8 π/4. ओके, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 times 1, 2 times 4, 4 times 1, 4 times 2. ठीक है, 4π minus 2π becomes 2π. So 4 minus 2π minus 4, which will become 8 minus 2π. So I can solve this sum as 8 minus 2π. बराबर है ना, कुछ तो रॉन्ग किया है क्या? आंसर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस 2 times 1, 2 times 4, 4 times 1, 4 times 2, 4π minus 2π will become 2π. ठीक है, 1π/2, 5/4, 4π minus 2π becomes 2π, 2π minus 4, minus minus becomes plus, 4/2, 8, बराबर है ना, so 4, ठीक है, so if I solve this, ये हो जाएगा, this will become 8/4 minus 0, ठीक है, minus x/2 will become 4/2 becomes, ये हो जाएगा 0, because 4 times 4 is 16, this entire part becomes 0, plus 16/2 is 8, sin inverse 1 माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट 2√2/2 becomes √2, √2 into 2√2 becomes 2 times 4, 2 times 2 becomes 4, ठीक है, minus 4, so √2, 2 times 2 is 4, ठीक है, 4 minus 8/2π, एक मिनट, 2 times 4, 4 times 2 is 8, 4π minus 2π, गलत हो गया, I think that is correct. 1/2 2√2 8 sin inverse 1 minus 2√2 √8, 8 plus, अरे ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस है, ये एडिंग दिस, वी नॉट सब्ट्रैक्टिंग, अरे यार सॉरी, सो प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, सो प्लस हो जाएगा, वही सोच रहा था गलती से, बिकॉज this area plus this area will give you the area of shaded region, so plus हो जाएगा, this will become plus, so my answer is 2π. This is the answer, 2π square units. So this is the answer that is given to you. So this is circle and line का equation, okay, 2π square units. Yes, you can directly find the area from this also, half into base into height. If you want to solve it, you can get, इससे base मिल जाएगा, इससे height मिल जाएगा, you can directly get the answer. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन ऑफ दिस.
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x axis and the x axis. Okay, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 and the x axis. Okay, चलो x axis भी छोड़ दो, इसको ही लिखो. Find the area. I have to find the area of ellipse. Can anyone tell me what is the formula for area of the ellipse? Anyone remembers? No? ठीक है, let's solve it. I had given a shortcut area of the ellipse का formula. Okay, सबसे पहले let's check for the origin. X is equal to 0, y is equal to 0. LHS will become 0, RHS will become 1, not passing through the origin. Let's start with plotting. I'll take x is equal to 0, y will become plus minus b. I'll take y is equal to 0, this will become plus minus a. Okay, this is the plotting part. Let's draw a geometrical figure. Let's draw a geometrical figure. ठीक है, ellipse. According to this, अब मैं क्या करूँगा, देख क्या मालूम पड़ रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर बोथ योर एक्सिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होता है दैट डिवाइड्स योर ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू इक्वल पार्ट्स. So the geometrical figure divides into equal parts, मतलब x axis is also dividing the geometrical figure into equal parts. My y axis is also dividing the geometrical figure into two equal parts. तो axis of symmetry यहाँ पे लिख देंगे, axis of symmetry x and y both. So guys, remember this, axis of symmetry is x axis and y axis both. Both the axes are your axis of symmetry. So axis of symmetry is x axis and y axis both. X axis and y axis both. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, axis of symmetry is x axis and y axis both. कुछ नहीं करना मुझे. I will find area is equal to. अब कोई बोलेगा यार what am I supposed to take dx or dy? कुछ भी लो. If someone is taking x axis, तो I'll take 0 to a y dx. But मुझे बोला गया है find the area of ellipse. Find the area of ellipse. Since they are asking me to find the area of ellipse, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है. There is one thing missing. Can anyone tell me what is missing in this? There is one obvious thing that is missing. What is missing here? बोलो. I have to find the area of ellipse. Can anyone tell me what is missing here? Because it is being equally divided. So what I am going to do is I am going to find the area of one section and I am going to multiply 4 because it is going to be the same for all. So हम 4 को बाहर लिखेंगे and according to this, अगर y का वैल्यू, if I substitute y का वैल्यू, देखो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? I'll just show this to you here. देखो x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Y square upon b square is equal to 1 minus x square upon a square. तो y square is equal to b square by a square. A square minus x square. So y का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, b by a अंडर रूट ऑफ a square minus x square dx.
4 तो है, 4 को बाहर ले लो एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू a. सो 4b/a को बाहर ले लिया, 0 टू a रहेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसको ले लिया 4b/a x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a फ्रॉम 0 टू a. एंड अगर मैंने 0 टू a में यहाँ पे a डाल दिया, x की जगह a डाल दिया, सो 4b/a मैंने x की जगह a डाल दिया, ये हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अगर 0 डाल दिया ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया, हो गया. सो दिस विल कम 4b/a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2. सो दिस विल बिकम पाई ab and this is the area. The area for ellipse is pi ab, pi ab square units. This is the area for pi ab. Has everybody understood this? Please start writing.